नंबर्स लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर अच्छा नंबर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, पहले ही स्टार्ट कर दिए थे पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर इंट्रोड्यूस करना और उनको नंबर लाइन पर पॉइंट से रिप्रेजेंट करना। बाय फर्स्ट डिफाइनिंग द सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये यन, कैपिटल यन डिनोट्स द सेट और द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या काउंटिंग नंबर्स और natural numbers, which begins with, this set begins with 1, the smallest natural number, and in roster form or tabular form, this set is represented like this: 1, 2. By adding 1 in each number, we get the next natural number, and these are the numbers which are, as we see that they are called natural numbers, which are not produced, but this is taken as a base, you see, assuming that these numbers are already prevalent. Means sometimes someone would say that these numbers are given by nature, therefore they are called natural numbers. इनसे स्मॉलर सेट्स, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 2n में डिनोट द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। फिर बिल्डर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसको कहते हैं नंबर्स जो 2 के मल्टीपल होते हैं, दे आर कॉल्ड इवन नेचुरल नंबर्स और इवन पॉजिटिव इंटीजर। So continuing the same process, you see, 2n plus 1 may denote the set of all odd integers, set of integers including 1. पॉजिटिव इंटीजर्स ही कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। We can easily extend the same set of negative integers as well. Odd integers या odd natural numbers, एक ही बात है, and it will include 1, 3, 5, and it means the set of natural numbers n is in this way. See, we divide the set of natural numbers into 2 smaller sets, set of even integers and set of odd integers. There are several other types of numbers also, like p. P denotes the set of prime numbers. प्राइम नंबर। अब स्टार्ट में हम लोग यहाँ पॉजिटिव इंटीजर को या नेचुरल नंबर को केवल नंबर बोलेंगे। नंबर्स which are divisible by 1 and itself. A few prime numbers in the beginning are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, and so on. And it can be seen that it is not always possible to describe this set of prime numbers in a definite manner, like even integers and odd integers. इनको अलग से ही जानना पड़ेगा।
we next introduce the set of whole numbers which will include 0 in the set of natural numbers. W denotes the set of whole numbers. By including 0, the number 0 has some peculiar properties. Set थ्योरी के टर्म्स में या टेबुलर फॉर्म में इसको लिखें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में दिया रहता है उस तरह से. Then by including all negative integers -1, -2, -3 and so on in W, we get the set of integers. I or Z, set of integers को कैपिटल I या कैपिटल Z से डिनोट करेंगे, and therefore it is described like this. In between 0, 1, 2 सारे whole numbers and सारे negative integers, या कभी कभी फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ राइटिंग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. इंटीजर्स के सेट पर भी इवन और आर इंटीजर्स अलग किए जा सकते हैं. नंबर्स जो 2 के मल्टीपल होंगे, अब -2 को भी हम लोग 2 का मल्टीपल मानते हैं. So we can introduce the set of even integers, set of odd integers and so on. And sometimes if we require it, we can find the set of any multiple of integers. जैसे ये सेट जो अब लिखेंगे वो it will include all possible multiples of integers. M is a natural number or positive integer. Then Mi will denote the set of all integers which are multiple of M. और ये सेट टेबुलर फॉर्म में आई थिंक 0, it will include 0 because 0 is a multiple of any number. 0 फिर +-m +-2m, यानी सारे इंटीजर्स को हम m से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. ये m के मल्टीपल वाले नंबर सारे. By introducing another concept of the representation of set, another method of representing a set in which we describe common property of all relevant to the set. A common property.
जैसे यम आई द सेट ऑफ ऑल यम मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख रहा है यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू yum into n, where n is any integer, and you belongs to means n is an integer. Still another larger set of numbers will be the set of rational numbers. Numbers of this type is जब डिविजिबिलिटी की जाती है सेट ऑफ इंटीजर्स पर, डिवीजन करते हैं किसी इंटीजर का किसी नॉन जीरो इंटीजर से, तब इस तरह के नंबर्स p upon q where q is not equal to 0, कि जीरो से डिवीजन नहीं किया जाता, देयर इज नो रूल, नो प्रोविजन ऑफ डिवीजन बाय जीरो इन मैथमेटिक्स, और p and q आर इंटीजर्स. Are called rational numbers. जब एक इंटीजर को दूसरे नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करके लिखते हैं इस तरह से कि ये अगर कोई कॉमन फैक्टर हो दोनों में तो उसको रिमूव करके इन द लोएस्ट फॉर्म, जनरली जैसे 4/6 को रिड्यूस करके हम लोग 2/3 लिखेंगे, दो कैंसिल कर देंगे, जो फैक्टर कॉमन हो दोनों में उसको नहीं लिखते. इन द सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने का मतलब कि कॉमन फैक्टर, सो दैट द टू नंबर्स p एंड q आर को प्राइम कहा जाता है. को प्राइम मतलब कि p और q में वन इज द SDF, केवल वन ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. और सेट ऑफ the set of rational numbers is denoted by q. ये सेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी नंबर्स जो रेशनल नहीं होते, जिनको हम लोग इररेशनल नंबर्स कहते हैं, उससे कंप्लीट होगा. लेकिन ये ध्यान रखने लायक है कि जैसे हम लोग ये रेशनल नंबर्स को तो हम एक प्रॉपर वे में क्यू के भी बहुत सारे क्यू के स्मॉलर सेट्स लिखते हैं, एंड क्यू इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे अभी यहां देखें ना, यक्स लिखा है यक्स इक्वल टू p अपॉन q. अब ये नहीं कह रहे हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर. इंटीजर्स के सेट को कैपिटल Z से या I से, कैपिटल I से भी डिनोट किया जाता है. अब इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये देख सकते हैं को Q को अगर हम 1 ले लें तो सारे इंटीजर्स इस सेट में हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. फिर ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 2 हो, वो भी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर इज 2. तो हम लोग लिखेंगे तो जैसे लिखना प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2 लोएस्ट फॉर्म में. 3/2 तो और भी बहुत मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 6/4, 9/6. तो वो जो फैक्टर कॉमन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 7/2 एंड सो ऑन. नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 3 हो, ऐसे भी बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स मिलेंगे, प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/3 एंड सो ऑन. ऐसे और भी लिखेंगे. ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 4 हो, प्लस माइनस 1/4, और ये एंडलेस है, इट कैन बी कंटिन्यूड इंडेफिनिटली. 2/4 नहीं लिखेंगे, 1/2 आ गया, 3/4, फिर 5/4 एंड सो ऑन. फिर ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 5 हो और ये कंटिन्यू कर कहीं तक, तो
ये आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद बहुत ही फास्ट नए नंबर जनरेट हो गए। ऐसे इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होंगे जिनका डिनोमिनेटर 2 हो, जिनका 3 हो, जिनका 4 हो एंड सो ऑन। तो बहुत सारे सेट्स अगर अलग अलग लिखना चाहें तो ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्योंकि और भी स्मॉलर सेट्स जैसे किसी पर्टिकुलर गिवन इंटीजर के पावर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2 पावर एक्स, where x is any integer। अब ये बंधन रहता है ना, ये सबसेट नहीं बोलना चाहते इसलिए ऐसे करें ना, स्मॉलर सेट्स रिलेटेड विथ क्यू। Like one example is G is the set of numbers of the form x such that x equal to 2 power r, where r is any integer। इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा एंड सो, और 1/2 आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है जी, ये सही है ना। ऐसे किसी गिवन बेस पर रेशनल नंबर्स इस टाइप से 3 के बेस पर जैसे करें तो 3 1 3 स्क्वायर 3 9 एंड सो ऑन, और इधर की तरफ 1/3 1/9। नंबर्स जो रेशनल नहीं होंगे, नंबर्स जो रेशनल नहीं होते, बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो रेशनल नहीं होते, जो नेचर में ही मिलते हैं, जैसे पाई, जो कभी आर्किमिडीज ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद लोगों ने काफी अच्छा काम किया है पाई पर। पाई इज नॉट रेशनल। ई स्टिल अनदर इंपॉर्टेंट नंबर जो कहा जाता है कि नेचर में पाया, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स उससे रिलेटेड होते हैं। ई नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल। सिंप्लिसिटी के लिए केवल इर्रेशनल ही बोल दें, कोई हर्ज नहीं, नंबर बार बार ना कहना पड़े इसके लिए। स्क्वायर रूट 2, 2√3, √7 और भी बहुत सारे। ये तो केवल स्क्वायर रूट का लिखा हुआ है। वी कैन राइट द क्यूब रूट ऑफ नंबर 2 पावर 1/3। ये अच्छा इंटरेस्टिंग होता है ये जानना कि 1 और -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट क्यूब रूट काफी इंटरेस्टिंग होता है और उसी से रिलेटेड होता है। 3 का पावर 1/3 एंड सो ऑन। एंड ई is also a number of this type, 1 plus 1/। अब रूल जो लिखा जाता है वो तो वैसे है, ये 1 फैक्टोरियल लिखते हैं वैसे, लेकिन ऐसे लिखेगा 2 plus 1/6 1/24। 6 को 4 से और मल्टीप्लाई करें, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 120, इसको 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 720। ये भी इर्रेशनल होता है और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच होगी, ऐसा देख सकते हैं। और सब और भी इंपॉर्टेंट नंबर है पाई, विच इज एसोसिएटेड विद अ सर्कल इन अ प्लेन। So let's talk about the representation of numbers by the points on a line called number line। So we first represent ये केवल इंट्रोडक्शन है, इसका और डिटेल भी किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स
a formal way of representing all the numbers by the points on a line. सारे नंबर लाइन पर पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, जीरो हो, नेगेटिव इंटीजर, सारे इंटीजर, सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन पर पॉइंट से नहीं, प्लेन में डिफरेंट पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नहीं, नंबर लाइन पर भी जैसे सारे रियल नंबर्स कहेंगे जब, जो प्योरली रियल होते हैं, वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे। प्योरली इमेजिनरी नंबर्स i, 2i, 3i, वो पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होंगे। लेकिन बाकी और नंबर जिनके ना रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो नहीं होते, तो पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे अदर देन द नंबर पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑन द एक्सिस। अरे फर्स्ट क्वार्टर में होंगे या सेकंड में होंगे या थर्ड में होंगे या फोर्थ। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, और लाइन जब ड्रा करते हैं then we assume that they are it is endless on both sides. The line has no ends and it consists of infinitely many points. बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, ऐसा कहा जाता है, और एक डेफिनेट पैटर्न से लाइन। जैसे कई लोग ये कहते हैं ना कि दो पॉइंट्स अगर ले लें हम प्लेन में, तो इनके बीच जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो लाइन सेगमेंट होगा। कोई और पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विल बी लार्जर देन लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन पर कोई पॉइंट समवेयर इन द मिडिल, एक पॉइंट ओ ले रिप्रेजेंटिंग जीरो, ओरिजिन। पॉइंट ओ सुटेबल तरीके से जैसा जरूरत है, क्योंकि नंबर लाइन पर मिडिल, लाइन का मिडिल तो जब लाइन सेगमेंट होता है तब हो सकता है ना, और जो ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट में कहीं तक जा सकता है, राइट में भी, तो मिडिल पॉइंट नहीं लेना। लेकिन अपने फाइनाइट प्लेन पर तो कह सकते हैं ना, लाइन इतनी लेंथ है तो बीच में कहीं है। और दोनों तरफ, ओ के दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स लेकर के, राइट हैंड में जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स होंगे, इनसे सारे नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे, और लेफ्ट हैंड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होगा कि हम लोग अपने अवेलेबिलिटी जितना स्पेस मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग तय कर लेंगे कोई स्केल, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स प्लॉट कर लें, और इन सभी से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट से जो नियरेस्ट होगा ओरिजिन के वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद 2, फिर 3 एंड सो ऑन। अब पॉइंट का नाम लिख करके कर सकते हैं या ऐसे ही करते हैं। ओ के राइट हैंड में सारे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और ओ के लेफ्ट हैंड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और ये अभी देखेंगे हम लोग कि रिमेनिंग सभी नंबर चाहे रेशनल या इरेशनल आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानकर कि कोई भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर किन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, वो आसानी से देख सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग द नंबर इन डेसिमल फॉर्म और अदरवाइज।
रह गया। इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले टर्म पर। ये निकाल दीजिए। हाँ, लेक्चर नंबर 3 ये